Hallelujah. हालेलुया। Good morning, my dear brothers and गुड sisters. मॉर्निंग मेरे प्रिय भाइयों बहनों। Once again, we welcome you to our church service. और एक बार हम फिर से अपनी कलीसिया की सेवा में आपका स्वागत करते हैं। We believe that you have been enjoying our fellowship हम ये विश्वास करते हैं कि आप हमारी संगति में आशीषित होते हैं and simple teachings that we are releasing from here. और वो साधारण शिक्षाएं जो हम यहाँ से देते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Our desire is to see you as a victorious Christian. और हमारे मन की इच्छा ये है कि आपको एक विजयी मसीह हम देख सकें And bring forth much fruit for the kingdom of God. और परमेश्वर के राज्य के लिए अधिक फल लाने वाले हो सकें And live an exemplary life for the present generation and for the next generation. और एक अच्छी हम पीढ़ी को इस समय और आने वाली पीढ़ियों को हम उत्पन्न कर सकें। Hallelujah. हालेलुया। Today we are going to speak on a very hard topic, और आज हम एक थोड़ा कठोर विषय पर बातचीत करेंगे and I believe nobody wants to hear this word. और मैं ये विश्वास करता हूँ कि कोई भी इस शब्द को सुनना नहीं चाहता। But this has been mentioned in the Bible several times. लेकिन ये बाइबल के अंदर बहुत बार दिए गई है And many Christians are affected by this word. और बहुत सारे जो मसीह लोग हैं वो इससे प्रभावित हैं। And it's called arrogance. और ये कहलाता है हठीलापन। Arrogance is actually a very hard word. जो हठीलापन है वास्तव में ये एक कठोर शब्द है And God hates arrogance. और परमेश्वर जो है वह हठीले व्यक्ति लोगों से नफरत करता है। If you read the Bible, यदि आप बाइबल को पढ़ेंगे you will notice that from the beginning to the end, God is angry with the arrogant people. तो आपने देखा होगा परमेश्वर आरंभ से लेकर अंत तक जो हठीले लोग हैं उनसे परमेश्वर नफरत करता है। The arrogance is a sin in the sight of God. जो हठीलापन है वो परमेश्वर की दृष्टि में वो पाप है। And we also know that there are people who have a very hard heart. हम जानते हैं कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका हृदय वास्तव में बहुत कठोर है। The arrogance is just opposite of humbleness. जो हठीलापन है वो नम्रता के बिल्कुल उल्टा शब्द है। I have written some words for arrogance. और मैंने हठीलेपन के ऊपर कुछ वचनों को लिखा है। Stiff-necked, stubborn, hard, rebellious and proud. अभिमानी, हेकड़, हठी, अक्कड़, घमंडी, अहंकारी, जिद्दी, कठोर, अड़ियल और हठ धर्मिता। In Hindi there are so many words. और हिंदी This is a character. ये एक चरित्र है And this character brings a man very low. और ये जो चरित्र है एक व्यक्ति को बहुत नीचा बनाती है। In the Bible, बाइबल के अंदर we find few people, हम बाइबल में पाते हैं कुछ लोगों को specific people, और विशेष कुछ लोगों को those who were very hard, जो बहुत अधिक कठोर थे। arrogant people. वो हठीले लोग थे। Pharaoh, the king of Egypt, फिरौन जो मिस्र का राजा था, Nebuchadnezzar, king of Babylon, नबूकदनेस्सर जो बेबीलोन का राजा था, Absalom, the brother of Solomon, और अबशलोम जो सोलोमन का भाई था, and Saul the king. और शाऊल राजा। And at the same time there was a pastor, priest Eli. और यहाँ पर एक पास्टर जो याजक एली जो याजक थे वे भी। These all people have been written as arrogant people. और ये सब उनके बारे में पाए And we'll read few more verses from the book of Proverbs, और हम नीति वचन में से भी कुछ वचनों को पढ़ेंगे so that we will be able to understand the right meaning of arrogance. ताकि हम जो हठीलेपन का सही शब्द है उसको हम समझ। Proverbs chapter 6 verse 12 to 19. नीति वचन 6 अध्याय और 12 से लेके 19 पद तक। And in fact we will read quite a few verses from the book of Proverbs. और नीति वचन में से भी कुछ पदों को हम पढ़ेंगे And we'll understand the real meaning and the attitude of an arrogant person. तो हम देखेंगे कुछ की हठीले व्यक्ति का के बारे में देखेंगे कि वो कैसा होता है। Proverbs chapter 6 verse 12 to 19.
और नीति वचन 6 और 12 से 19 पद तक, A scoundrel and villain who goes about with a corrupt mouth, who winks his eye, signals with his feet, and motions with his fingers, who plots evil with deceit in his heart, he always stirs up dissension. Therefore, disaster will overtake him in an instant. He will suddenly be destroyed without remedy. There are 6 things the Lord hates, 7 that are detestable to him: haughty eyes, a lying tongue, hands that shed innocent blood, a heart that devises wicked schemes, feet that are quick to rush into evil, a false witness who pours out lies, and a man who stirs up dissension among brothers. 12 पद, ओछे और अनर्थकारी को देखो, वह टेढ़ी टेढ़ी बातें बकता फिरता है। वह नैन से सैन और पाँव से इशारा और अपनी उंगलियों से संकेत करता है। उसके मन में उलटफेर की बातें रहती, वह लगातार बुराई गढ़ता है और झगड़ा रगड़ा उत्पन्न करता है। इस कारण उस पर विपत्ति अचानक आ पड़ेगी। वह पल भर में ऐसा नष्ट हो जाएगा कि बचने का कोई उपाय ना रहेगा। 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 है जिनसे उसको घृणा है, अर्थात घमंड से चिड़वी आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, बुराई करने को वेग दौड़ने वाले पांव, झूठ बोलने वाला साक्षी और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। These are the symptoms of a person who has an arrogant heart. ये एक हठीले व्यक्ति के कुछ ऐसे गुण हैं जो ये बताते हैं कि उसका जो हृदय वो कठोर है। I'm sure that you must have come across such people. और मैं ये विश्वास करता हूँ कि आपने भी ऐसे लोगों को देखा होगा। And we have also seen such people in our lives. और हमने भी अपने जीवन में ऐसे लोगों को देखा है। And even in the church and Christian circle. और यहाँ तक कि कलीसियाओं में और मसीह समाज में भी। So we need to understand that stubbornness or arrogance is a sin against God. अब देखिए कि जो हठीलापन या ढीठता है वो परमेश्वर के विरोध में एक पाप है। I have seen many people were destroyed by this sin. और मैंने देखा है अपने बहुत सारे लोगों को जो इस पाप के कारण नष्ट हो गए। And they did not repent or they did not bring about any correction in their lives. जिन्होंने ना तो पश्चाताप किया ना अपने जीवन में किसी भी बात का सुधार किया। But as you are listening to this message, लेकिन जैसा कि आप इस संदेश को सुन रहे if हैं, you are affected by this kind of problem, यदि आप इस प्रकार की समस्या से ग्रसित हैं, you can just come and repent before God. तो आप आए और परमेश्वर। Dr. William Carey once said, डॉक्टर विलियम कैरी ने एक बार कहा God cannot work with an arrogant person. कि परमेश्वर जो एक हठीले व्यक्ति के साथ काम नहीं कर सकता। And the heart of an arrogant person devises so many wicked things or wicked schemes. और जो एक हठीला व्यक्ति होता है उसके हृदय के अंदर बहुत सारे बुरे विचार और बुरी कल्पना योजनाएं होती हैं। And he hears everything. और वो सब कुछ सुनेगा, But he never allows his heart to receive the good word that is being preached. और वो अपने हृदय को यह अनुमति नहीं देगा कि जो अच्छी शब्द बातें बताई जा रही हैं उसको वो प्राप्त करे। And that is why he brings about the destruction upon his life, upon his family. और इसीलिए वो अपने जीवन में और अपने परिवार के जीवन में विनाश को लेकर आता है। Many people had the opportunity to come out of this kind of sin. बहुत सारे लोगों के पास ये मौका था कि वो इस पाप से वो निकल आए, But they deliberately chose to be arrogant people all of their lives. लेकिन उन्होंने इस बात का चुनाव किया वो कि अपने जीवन भर में वो हठीले बने रहेंगे। Proverbs 29 verse 1 says, नीति वचन 29 और 1 कहता है, it says, a man who remains stiff-necked after many rebukes will suddenly be destroyed without remedy. जो बार बार डांटे जाने पर भी हट करता है वह अचानक नष्ट हो जाएगा और उसका कोई भी
उपाय काम न आएगा। See, this is the word of God. अब देखिए, ये परमेश्वर का वचन We है। cannot change the word of God. हम परमेश्वर के वचन को नहीं बदल सकते, But what we can do is we can change ourselves. लेकिन हम क्या कर सकते हैं? हम अपने आप को बदल सकते हैं। You see, in the Bible, अब देखिए, बाइबल के अंदर those who were stiff-necked, वे लोग जो हटीले थे, including, इजराइल के लोग भी, and they were destroyed on the way. और वो मार्ग में नष्ट हो गए। They could not reach the promised land. वो प्रतिज्ञा की गई भूमि में नहीं पहुंच पाए। What was the main sin? और जो उनका मुख्य जो पाप था वो क्या था? That sin was they were arrogant. जो उनका मुख्य पाप था वो था उनके हटीलापन। Moses and Aaron were teaching those people, मूसा और हारून ने उन लोगों को सिखाया be humble. कि नम्र बनो। God knows your requirement or needs. परमेश्वर तुम्हारी आवश्यकताओं को, जरूरतों को जानता He है। has brought us out of the kingdom of slavery. परमेश्वर हमको दासत्व के जुए से निकाल के ले He आया is है, going to take us back to our own land. और वो वापस हमको अपनी भूमि में ले जाएगा। But after some time, लेकिन कुछ समय बाद they became stiff-necked. लोग फिर से हटीले बन गए And God was angry. और परमेश्वर क्रोधित हुआ। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, if you are watching this video, यदि आप इन वीडियोस को देख रहे हैं, and if you are the person who is called arrogant, और यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो हटीले कहलाते हैं, you have learned sufficiently about the definition of a person called stiff-necked, तो आप हटीलेपन की परिभाषा जहाँ पे दी गई है उसको आप समझ सकते हैं, and you can come out of this sin. और आप इस पाप से बाहर आ सकते हैं। We will make only foundation today, और आज केवल हम इसकी नींव रखेंगे, but we will go further next Sunday. लेकिन हम अगले रविवार और आगे We will चलेंगे। see the symptoms of an arrogant person, how you can recognize an arrogant person. और हम देखेंगे कि एक हटीले व्यक्ति के अंदर क्या बातें होती हैं, तब आप पहचान जाएंगे कि हटीला व्यक्ति कैसा होता है। Today we are going to speak very less, लेकिन आज हम कम बोलेंगे so that you can understand it. ताकि आप इसको समझ पाएं। But today लेकिन आज we are covering very short part of this topic, लेकिन आज हम इसके एक छोटे भाग को हम लेंगे, and we will try to see that this sin of arrogance is not all alone. It has several sins attached to it. ये अकेला एक पाप नहीं है, लेकिन इसके साथ और भी बहुत ढेर सारे पाप जो हैं वो जुड़े हुए हैं। And we'll read 1 Samuel chapter 15 और हम pढ़ेंगे पहला शमूएल 15 अध्याय and 23 and 24 verses. और 23 से लेके और 24 पद तक। And I want to explain the background of these verses. और मैं इन पदों के पीछे क्या भूमिका है उसको बताऊंगा। You see, God asked Saul, king, to wipe out all the Amalekites. देखिए, परमेश्वर ने शाऊल को बताया था कि जो अमेलेकी हैं उनकी सारी चीजों को तुम नाश कर देना। But what happened? लेकिन क्या हुआ? He did not fully obey the commandment of God. लेकिन उसने परमेश्वर की पूरी आज्ञा को केवल 50% माना। And God is not happy when you and I obey Him 50%. परमेश्वर खुश नहीं होता जब हम 50% मानते हैं। In our classes, we obey our teachers. और हम अपनी कक्षाओं में अपने जो शिक्षक होती है उनकी बात को मानते हैं। We obey our governments. हम अपनी सरकारों की बात को मानते हैं। How much more we should obey our God in heaven. तो जो हमारा परमेश्वर जो स्वर्ग में, तो उसकी बातों को हम कितना क्यों ना मानेंगे। So what happened? तो क्या हुआ? Saul only obeyed God 50%. लेकिन शाऊल ने केवल 50% ही परमेश्वर की बात को माना। And God was angry with him. और परमेश्वर उसके साथ क्रोधित And हुआ। He sent Samuel the prophet. और उन्होंने शमूएल नबी को भेजा। And Samuel said to King Saul. और शमूएल भविष्यद्वक्ता ने राजा शाऊल को बताया। 23 verse. 23 पद में, For rebellion is like the sin of divination, and arrogance like the evil of idolatry. Because
You have rejected the word of the Lord. He has rejected you as king. Then Saul said to Samuel, I have sinned. I have violated Lord's command and your instruction. I was afraid of the people, so I gave in to them. देख, बलवा करना और भावी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है, और हट करना मूर्तों और ग्रह देवताओं की पूजा के तुल्य है। तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। शाऊल ने शमूएल से कहा, मैंने पाप किया। मैंने तो अपनी प्रजा के लोगों का भय मानकर और उनकी बात सुनकर यहोवा की आज्ञा और तेरी बातों का उल्लंघन किया है। See what Samuel अब देखिए, जो नबी शमूएल हैं वो शाऊल से क्या कह रहे हैं। He says this rebellion is divination. कि देखो, बलवा करना हम भावी कहलाने के समान है। It is like this. ये इस प्रकार से He है became rebellious person. और कि वो एक बलवा करने वाला व्यक्ति बन गया, He never went to practice divination. और वो कभी भी भावी कहने वालों के पास नहीं गया। But this sin is automatically attached with rebellion spirit. लेकिन जो उसका जो बलवा करना था वो स्वतः ही एक भावी कहने के समान बन गया। So one sin और एक पाप has brought automatically another sin. और एक पाप और स्वतः ही दूसरे पापों को आ गए। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों if बहनों, you are arrogant person, यदि आप एक हठीले व्यक्ति हैं, you will definitely become rebellious. तो आप निश्चय ही आप बलवा करने वाले बन जाएंगे। I have seen many people, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, they are now crying day and night और जो वह अब रात और दिन रो रहे हैं because they have rebelled against their parents. क्योंकि उन्होंने अपने माता पिता के विरुद्ध बलवा किया। If you have been rebellious person to your parents, you will not be able to come under the submission of the pastor in the church. और यदि आप एक बलवा करने वाले व्यक्ति रहे हैं तो आप कभी भी अपने पास्टर की अधीनता में आप नहीं रह पाएंगे। You will not be subjected or come under the submission of anyone. और तो फिर आप किसी की भी अधीनता में आप नहीं रहेंगे, Because you have developed a heart of arrogance. क्योंकि आपने अपने अंदर हठीलेपन के हृदय को आपने बना लिया है। So rebellion, the sin of divination. तो बलवा करना जो है वो भावी कहलाने वाले के बराबर पाप And then है। arrogance like the evil of idolatry. और जो हट करना है, हठीलापन है, वे मूर्ति पूजा के बराबर है। If you are an arrogant person, यदि आप एक हठीले व्यक्ति the हैं, Bible says the sin of idolatry is been attached to your character. यदि आप बलवा करने वाले व्यक्ति हठीले हैं तो ये जो मूर्ति पूजा का पाप है ये उसके साथ अपने आप ही जुड़ जाएगा। See, these sins are being multiplied. अब देखिए, ये जो पाप है ये बहुगुणित होते जाते हैं, And the base sin is being arrogant. और जो इसका मुख्य पाप है वो है हठीलापन। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, you can remove this spirit of arrogance from your life. तो आप अपने जीवन से इस हठीलेपन की आत्मा को दूर कर दें। Hallelujah. हालेलुया। You can do it आप इसको कर सकते हैं because God's Holy Spirit will help you. क्योंकि परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपकी सहायता He करेगा। will pray for you. हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। The world says संसार कहता है that this arrogance is caused by insecurity, superiority, low esteem or fear of competition. संसार ये कहता है कि जो बलवा करना है ये असुरक्षा को और अपने आप को बड़ा बनने को और अपनी इज्जत को, अपने आप को ऊंचा उठाने को बनाता है, And fear of competition. और ये डर के प्रतिस्पर्धा को लाता है। This is world view. ये संसार की दृष्टि है। It says that these things lead a person to become stubborn. और ये लोग कहते हैं कि ये चीजें जो एक व्यक्ति को हठीला बना देती They may हैं, be true. और ये सच भी हो I सकता है। respect this view. और मैं इस विचार का मैं
respect more the biblical view. लेकिन मैं उससे बढ़कर जो बाइबल के दृष्टिकोण है मैं उसका मैं आदर करता हूँ, Because Bible has the remedy. क्योंकि बाइबल के अंदर जो है वो उपचार है। And we will talk about remedy on the last Sunday. और हम जो है अब अगले रविवार को इसके उपचार के ऊपर बातचीत करेंगे। We will take few Sundays to complete this topic, और हम कुछ रविवार को लेंगे इस विषय को पूरा करने के लिए, so that you will fully understand and get rid of this sin. ताकि आप इसको पूरी तरीके से समझ सकें और इस पाप से बाहर आ सकें। Hosea chapter 5 होशिया अध्याय 5 and verse 4 and 5. और 4 और 5वां पद। It has the right meaning and right cause of this kind of sin. और इसका यहाँ सही अर्थ इस पाप का दिया गया है। It says verse 4 and 5. और 4 और 5वें पद में ऐसा लिखा है, Their deeds do not permit them to return to their God. A spirit of prostitution is in their heart. They do not acknowledge the Lord. Israel's arrogance testifies against them. The Israelites, even Ephraim, stumble in their sin. Judah also stumble with them. 4 पद, उनके काम उन्हें अपने परमेश्वर की ओर फिरने नहीं देते, क्योंकि छिनाला करने वाली आत्मा उनमें रहती है और वे यहोवा को नहीं जानते। इज़राइल का गर्व उसी के विरुद्ध साक्षी देता है और इज़राइल और अप्रेम अपने अधर्म के कारण ठोकर खाएंगे और यहूदा भी उनके संग ठोकर खाएगा। You see, this is a spirit of arrogance. अब देखिए, ये है हठीलेपन की एक आत्मा। That is why this spirit does not allow a person to come back to God. और इसीलिए ये जो आत्मा है ये उसको अनुमति नहीं देती कि वो परमेश्वर के पास वापस आए। This is a demon. और ये एक दुष्ट आत्मा And है। this demon is holding people tightly. और ये जो दुष्ट आत्मा है लोगों को कस के पकड़ लेती है। Even those people who have arrogant heart, यहाँ तक कि वे लोग जिनके हृदय हठीले होते if they हैं, want to come to God, यदि वो परमेश्वर के पास आना चाहते they हैं will not be able to come. तो वो नहीं आ पाते हैं। Why? क्यों? Because the spirit is very powerful. क्योंकि ये जो आत्मा है ये The spirit of arrogance is not. हठीलेपन की आत्मा वो व्यक्ति को ही प्रभाव नहीं डालती। It says that the Ephraim and Judah will also stumble with them. और ये बाइबल कहती है कि इज़राइल, एप्रेम और यहूदा भी उसके कारण गिर पड़े हैं। So what to do? तो फिर क्या करें? We need to deal with this spirit of arrogance. तो हमें इस हठीलेपन की आत्मा के साथ वाद विवाद करना होगा। God always asked Israelites to have humble heart. परमेश्वर ने हमेशा इजरायलियों से कहा है कि वो एक नम्र हृदय रखें, But on the contrary, लेकिन इसके they विपरीत always became stiff-necked, वो हमेशा ही हठीले बने रहे, stubborn. हठीले। God was telling them repeatedly, और परमेश्वर we have people all around हमारे चारों लोग हैं and they also have this spirit. और उनके अंदर भी ये आत्मा है, Even in Christian churches. यहाँ तक कि मसीह कलीसियाओं में भी। That is why their churches are not growing और इसीलिए तो उनकी कलीसिया नहीं बढ़ पाती हैं spiritually, आत्मिक रीति से in numbers, और संख्या में financially. और पैसे में। They say that they are superior to others and they have a heart of stubbornness. वो अपने आप को ये बताते हैं कि वे दूसरे लोगों से बढ़कर हैं और उनका जो हृदय है वो एक हठीला हृदय है। So this is the root cause of being an arrogant person. और ये जो है एक हठीले व्यक्ति की एक मुख्य जो बात है वो यही है। What to do today? तो फिर आज क्या करें? You have, I believe, recognized this spirit in your life. तो आज आप अपने जीवन के अंदर इस आत्मा को पहचानें। So, and then you will ask the Lord to help you. तब फिर परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर आपकी सहायता करे। We will talk about all these things in our coming services. और इस सब के बारे में हम अपने आने वाली सेवाओं में बातचीत करेंगे। We'll discuss symptoms and we will talk about the impacts of
an arrogant person that lives on others' lives. तो फिर हम बातचीत करेंगे कि एक हठीले व्यक्ति के इसका क्या प्रभाव होता है, वो कैसे दूसरों के जीवन को प्रभावित करता है। And then we will also talk loss in a spiritual life by being an arrogant person. तब देखेंगे कि एक हठीले व्यक्ति को आत्मिक रीति से किस प्रकार की हानि होती है। And then remedies. और फिर हम बातचीत करेंगे उपचार के बारे में। It's important to talk about remedies और ये बहुत आवश्यक है कि इसके उपचार के बारे में बातचीत because करना, we have time. क्योंकि हमारे पास समय है Our Lord has not come so far. और अभी तक हमारा परमेश्वर आया नहीं We है। need to be the people of humble heart. और हमें आवश्यक है कि हम एक नम्र व्यक्ति बने Don't be arrogant. और एक हठीले व्यक्ति ना When somebody बने। is teaching you, जब एक व्यक्ति आपको सिखाता है learn from him, तो उससे सीखें learn from her, और उससे महिला से सीखें and then और तब apply what he says. और जो कुछ उसने कहा उसको अपने जीवन में लागू करें। I have been teaching certain people for the last 10 years और मैंने इस बारे में बहुत सारे लोगों को पिछले 10 सालों से सिखाया है on one और उनके जीवन की जो कमी थी उसके बारे में 10 years, 10 साल, but they are still the people of stiff-necked. और वो अभी भी वो जो हठीले लोग बने हुए The हैं। particular sin, I told them, this is not from God's side. God is not happy with this kind of attitude, but they are not repenting. और मैंने उनको बहुत बार बताया कि परमेश्वर जो इस प्रकार के व्यवहार से प्रसन्न नहीं होता, लेकिन वो And those people did not acknowledge their sin. और उन लोगों ने They are still continuing in the same sin for the last 10 years. और इसी पाप में वो पिछले 10 सालों से बने हुए हैं। And this year I stopped talking to them about this particular character. और इस साल मैंने उनसे इस बात पे बातचीत करना बंद कर दिया है। Hallelujah. हालेलुया। And I think that they are the most arrogant people in the world. और मैं ये सोचता हूँ कि वो संसार में सबसे अधिक हठीले लोग हैं। Pray for them हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं and ask the Holy Spirit to directly intervene in their lives. और हम प्रार्थना करते हैं कि पवित्र आत्मा सीधे उनके जीवन में उनसे बातचीत करे। God's Spirit can bring about changes in the life of people. और परमेश्वर का आत्मा जो है वे लोगों के जीवनों को बदल सकता So है। if you are watching this video यदि आप इस वीडियो को देख रहे and हैं God is speaking to you, और परमेश्वर आपसे बातचीत कर रहा my है, dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों I want बहनों, to encourage तो you मैं आपको उत्साहित करूंगा to leave this sin. कि इस पाप को छोड़ दें। The sin of arrogance will destroy you. और ये जो हठीलेपन का पाप है ये आपको नष्ट कर It देगा। will destroy your family, ये आपके परिवारों को नाश your कर देगा, career, आपके जीवन की your को बर्बाद कर देगा, your relationship, आपके संबंधों को बर्बाद कर देगा। and even God will not be happy with you. और यहाँ तक कि भी परमेश्वर, To God, my brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर के पास वापस लौट आओ। our God is a God of humble heart. हमारा परमेश्वर जो है वो नम्र हृदय He का is परमेश्वर full है। of mercy, वो करुणा से भरा हुआ full परमेश्वर, of grace. वो अनुग्रह से भरा हुआ He परमेश्वर। wants that we should change our lives. वो चाहता है कि हम अपने जीवनों को बदल And लें He has power to change. और उसके पास इस सामर्थ्य है बदलने की, But He will not do it automatically. लेकिन वो अपने आप ही आप नहीं बदलेंगे। You and I need to come back and repent. और आपको और हमको वापस आना होगा और पश्चाताप And करना होगा slowly God will change us. और परमेश्वर धीरे धीरे हमको बदल देगा। As you continue to go to your church, जैसे कि आप लगातार अपनी कलीसिया में जाते हैं, read the word, परमेश्वर के वचन को पढ़ें, understand it, उसको समझें, apply it, उसको लागू करें, and then God's Holy Spirit will help you to remove the root of sin from your life. तब परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन से इस पाप की जड़ को नष्ट कर देगा। Hallelujah. Hallelujah. We wish you well. हम आपकी अच्छे की कामना करते And we'll हैं। pray for you. हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष Shall दे। we pray together? आइए हम एक साथ मिलकर प्रार्थना Father करेंगे। God, we thank you for this hard word that you have given to us to release from here. परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं इन कठोर शब्दों के लिए जो आपने हमको दिया, जिनको हमने यहाँ से प्रसारित किया है। This sin of arrogance. ये हठीलेपन का पाप, Lord, we pray
प्रभु हम प्रार्थना You करते will हैं deal with every one of us with love. आप हम में से हर एक के साथ प्रेम के साथ व्यवहार करें। Help us so that we can understand that this sin is going to destroy us. और हमारी सहायता कीजिए ताकि ये पाप हमारे अंदर से नष्ट हो जाए And very soon we will remove this sin from our lives. और इस पाप को हम अपने जीवन के अंदर से निकाल दें। We need your help. हमें आपकी सहायता की We आवश्यकता thank है। you, Father. धन्यवाद We पिता। pray for all those who are watching us. हम प्रार्थना करते उन सारे लोगों के लिए जो हमको देख रहे हैं। Bless them. उनको आशीष दे, Help them. उनकी सहायता करें, Protect them. उनको सुरक्षा प्रदान करें। Lord, we pray that they will be fruitful Christians. प्रभु प्रार्थना करते हैं कि वो एक फलदायी मसीह बन And the सके fruit that they bring will remain for eternity. वे जो फल लाते वो अनंत काल तक फल बना रहे। Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद प्रभु We give you यीशु। all glory and honor. वे हम सारा आदर महिमा आपको देते हैं And in Jesus' name we pray. और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। Amen. आमीन Amen. और आमीन।